جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ایک کو نہیں ملنا. خان صاحب کا مورال کیسا تھا آج؟ ماشاءاللہ ان کو تو وہ تو ہاں. ایک اور انہوں نے بات کی, آپ لوگ پوچھتے ہیں جی خان صاحب کے کیا حالات ہیں, ان کی صحت ٹھیک ہے. آج انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پی ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے, کئی ہفتے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی یہ تار نکال کے لے گئے نا کئی, جب یہ 23 نومبر سے, تو وہ کہہ رہے تھے میں پی ٹی وی دیکھنا چاہتی تھا. تو ہم نے پوچھا کہ آپ خبریں سننا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں میں کرکٹ دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے تار نکالی ہوئی تھی, میں میچز نہیں دیکھ سکا, نہیں تو دونوں ہی میچ ہار کے میں ڈپریشن ہو جاتی ہوں مجھے. یہ انہوں نے میڈم سردی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کافی سرد ہو چکا ہے, اور پچھلے دنوں عمران خان کہہ رہے تھے کہ شاید کمبل بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. اب یہ بتائیے گا, ایک منٹ سوال لے لیں. پہلے سن لیں, کمبل ان کے پاس ہیں, کمبل ان کو دیا جاتا ہے. رضائی کی جیل کے ایس او پیز میں نہیں ہے کہ رضائی دی جائے. صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جنگلے کے اوپر یہ پلاسٹک کی شیٹ ڈالتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ گیپ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہوا زیادہ آتی ہے, تو ہم ان کے لیے اب کپڑے اور آئے ہیں. اب بیگ پڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑی مہم ہوتی ہے کہ جو بیگ پڑا ہوتا ہے ڈپٹی سپتین ورد کے کمرے میں, ہم اس بیگ کو کئی دن کی مہم ہوتی ہے کہ وہ کپڑے اب عمران خان تک کب پہنچتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اچھا عمران ویسے ماضی میں جب مریم نواز اڈیالہ جیل تھی تو وہ کہہ چکی ہیں کہ میں کپڑے بھی خود استری کرتی تھی, فرائی پان سے کرتی تھی. عمران خان کیسے کرتی؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ ارریلیونٹ کی طرف چلے جائیں. میں آپ کو ویسے میں بات کریں, آپ یاد رکھیں وہ 1.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. وہ مریم نواز کے پاس بہت بڑا کمرہ تھا, اٹیچ باتھ روم, ٹائلیں لگا ہوا, پورا کچن پورا چلتا ہوا, پورا اتنا بڑا صحن. یاد رکھیں عمران خان ایک چکی کے کمرے میں ہے اور چھوٹے سے کمرے میں ہے اور آئسولیشن میں ہے. اس جیل میں 12 گھنٹے آپ اندر بند ہوتے ہیں, 12 گھنٹے آپ باہر ہوتے ہیں. آپ ہم روز جیل میں جاتے ہیں, آپ یہاں کے دیکھیں لوگ اکٹھے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں. پوری جیل میں لوگ کھلے پھر رہے ہوتے ہیں. عمران خان آئسولیشن میں اندر ایک علاقے میں بند ہے جہاں پہ کہتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے اگر ہم کورٹ میں نہ جائیں تو عمران خان کی کسی سے کوئی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آپ یاد رکھیں 1.5 سال ہو گیا. آپ عمران خان کی ہمت اور ان کا جو جذبہ ہے وہ سب کے لیے انسپریشن ہے. آپ ان کو دیکھا کریں, وہ ہنستے ہوئے آتے ہیں. کل جو لوگ آئے نا ATC کورٹ میں, وہ پریشان ہو گئے دیکھیں کہ ایک جوان انسان ماشاءاللہ نکل رہے, کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے. ہمارے لیے وہ انسپریشن ہے. جب آپ دیکھیں وہ ہنس کے یہ باتیں کئی دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں, پریشانی میں نہیں بتا رہے, اور جو ان کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے وہی تو کہہ رہے چلو شکر ہے اگر تار ہوتی اور میں میچ دیکھ لیتا تو دونوں میچ ہم ہار گئے تو مجھے ڈپریشن ہی ہو جاتا. اچھا علیمہ صاحب لاسٹلی بتائیے گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ قومی حکومت بنا لیں, کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ میری بات سنو, 2 مطالبات ہیں عمران خان کے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, یہ خود پھنسے ہوئے ہیں سارے لوگ. ہمیں لیکن جو ہم نے دیکھے نا, خود ہم نے آئی وٹنس ہیں جو ہوا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ قوم اس وقت بڑے غصے میں ہے, اور یہ اس قسم کی جو مرضی فضول بات کریں, یہ فضول باتیں ہیں. اب یہ بات سیاست کی نہیں ہو رہی, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آ کے ماریں گے, آپ ہم لوگوں کو, ہم نکلیں گے, عورتیں بچے وہاں سب کھڑے تھے, اور اوپر سے چھپ کے مارو گے ہمیں. آؤ سامنے آ کے جس نے مارنے آ کے مارے, اور دیکھیں گے پاکستان کی قوم اتنی نہ ڈر ہے ان کے اندر, لیکن جو ظلم ہے یہ اب برداشت نہیں ہوگا. پشاور میں جو اجتماع ہوا شہداء کے حوالے سے, اس پر خان صاحب کو بتایا گیا, کیا کہنا تھا؟ بالکل ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ بھی اجتماع اور بھی بڑی جگہ پہ ہوا ہے, دنیا میں سب جگہ. کیا کہنا تھا خان صاحب؟ بالکل انہوں نے کہا ان کے وہ کہہ رہے نہیں, اور ان کو آپ ان کی فیملیز کو ملیں, ہمیں بھی کہا ہے آپ ان کو ملیں. وہ بہت جو ایک لائن کراس جو بہت زیادہ ہو گئی ہے نا عمران خان کے لیے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, جو ان کا موڈ دیکھا ہے, میں آپ کو ویسے اسیسمنٹ دے رہی ہوں, ہماری فیملی بات کر سکتی ہے. ایک ایسی لائن کراس ہو گئی ہے کہ اب عمران خان کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا, جو انہوں نے بڑے صبر سے, یقین کریں ہم سب کے صبر ختم ہو گئے, انہوں نے صبر سے کاٹا ہے اور ظلم بھی سہ لیا, لیکن جو ان کی تکلیف ہے نا جو شہداء کی, وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ
अब वो डायरेक्शन खुद दे रहे हैं कि कैसे चलना है और कैसे फैसला करना है। नीमा खान साहिबा, ये 2 रोज कबल इस्लामाबाद की अदालत के बाहर से 400 लोगों को जो रिहा किया गया था दोबारा गिरफ्तार किया गया, जबकि क़यादत में से एक भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। क्या ये भी खान साहब को बताया गया किस तरह वर्कर्स को लावारिस छोड़ दिए गए? मैं आपको बताती हूँ, ये जो लॉयर्स खड़े हैं ना, उनको लीड जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो हमारे लॉयर्स माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं, यहाँ खड़े भी हैं, ये भी यहाँ खड़े भी हैं। सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंबल पहुंचा रहे हैं लोगों को, कपड़े पहुंचा रहे हैं और सब लगे हुए हैं। और एक आप देखें, जो एक कम्युनिटी का काम होता है आप हमेशा उसको अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान में ये चीज़ हमें सीखने वाली है कि हमने मिल के काम करना है। आप सारा वक्त इंतजार करते हैं कि मेरे ऊपर कोई अब्बा अम्मा आके बैठे तो फिर मैं कुछ करूँगा। हमारे यंगस्टर्स, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सब मिलकर, और पाकिस्तान बहुत बड़ा एक डोनर मुल्क है, बहुत खुले दिल के लोग हैं और बड़े जज्बे वाले हैं। जेलों में सामान भी पहुंचा रहे हैं, ट्रेन हो गए। हमारे यंग लॉयर्स सारे जेलों के बाहर खड़े होते हैं, ILF वाले सारे जाके एक एक जेल इन्होंने लिस्टें, आपको तो हजारों लॉयर से पूछें वो बताते हैं। एक जेल में जाते हैं पता चलता है वो किसी और में जान के उनको सैरें करा रहे हैं कैदियों को। ये ढूंढ के इन लोगों ने जितनी मेहनत से लिस्टें तैयार की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखा है। यकीन करें इतने हजारों का ख्याल रखना नहीं। अभी जो 26 तारीख को इन बच्चों ने माशाल्लाह हमें फख्र करना चाहिए कि हमारी जवान नस्ल इनको तो बहुत मैं क्या मैं इनकी हमें अप्रिशिएट करना इनको तो चाहिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं 5-6 लोग आप कैसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क़यादत नजर नहीं आती है। जिस परस्त रिचर्ड गेनल को डोनाल्ड ट्रंप का मुआवन एलची मुकर्रर कर दिया गया है, उस पर रिचर्ड जनरल ने खुद आके रीट्वीट किया उसको और उस पर लिखा कि आई विल से अगेन फ्री इमरान खान। 26 नवंबर को इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, तो इस मामले को आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, हमारे तो वो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये फिक्र जिनको होती है, आपको पता है किनको फिक्र होती है, जो यहाँ पे जो आप क्या कहते हैं जो हुकूमत में लोग हैं, इनको ज्यादा फिक्र होती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इनके बारे में, क्योंकि इनकी इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इसलिए क्योंकि आपके जो हुकूमत में लोग बैठे हैं इनकी जायदादें उधर ही हैं, और आपको पता है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। उन्हीं के सेनेटर्स, यहाँ इतना जुल्म हो गया, इतनी शर्मिंदगी का बायस हो गया इन मुल्कों के लिए कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को उनके लिए शर्मिंदगी हो गई है उनको, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी इसके ऊपर, अब सोचें उनके ऊपर भी हम धमकियां देते हैं उनको फोन करके। वो गए हैं अपनी हुकूमत के पास, अमेरिका उनकी हुकूमत है, इंग्लैंड उनकी हुकूमत है, ऑस्ट्रेलिया उनकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ के ये नेशनल्स हैं पाकिस्तानी। उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से ये उनको धमकियां देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान से जुल्म करके ह्यूमन राइट्स अब्यूज करके यहाँ आते हैं, तो ये वाले जो इनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कह रहे हैं इनकी यहाँ प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट करें, इनके वीजे भी कैंसिल करें, और कई मुल्कों के वो इस तरह ही करते हैं। आपने यहाँ पे इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया, इस्लामाबाद मैसेकर है, और आप इसको कभी छुपा नहीं सकेंगे। तो जाहिर है अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ आपको पता है अदालतों में क्या मिलेगा इंसाफ, तो वो तो ये नहीं, आपको ये इनके ऊपर सख्तियां बैन लगाएंगे इन लोगों पे जो जिम्मेदार हैं इस किस्म के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए। अच्छा, रिचर्ड गेनल के अलावा बहुत सी मजीद ऐसे अमेरिकन लोग हैं जो कि ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या कोई इम्पैक्ट होगा इन ट्वीट्स का इमरान खान की रिहाई को लेकर? देखिए, ट्वीट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात सारी ये है कि इन मुल्कों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप ऐसे लोगों को वीजे देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं ये मुल्क, ये हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और मुल्कों में जब होता है तो उसके ऊपर ये जरूर इसके ऊपर आवाज उठाते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी हदें पार हो गई हैं कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है, क्योंकि हमारे वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पास जाके कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो आवाज उठाएंगे। अगर इन लोगों को फिक्र है कि वो क्या कहते हैं तो ये मुझे नहीं पता है। मैडम, ये भी बताइएगा,
खान साहब, क्योंकि कल से ये चीज़ जो है ना टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जब से रात से ये ट्वीट हुआ है रिचर्ड ग्रेनल का, तो उसके बाद से ये टॉप ट्रेंड बन गई है। ओवरसीज पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। खान साहब से, उनके वकीलों से या आपसे उनकी कोई ऐसी बात हुई है, खान साहब ने कोई जियो न्यूज़ के बारे में कोई बात की हो? क्योंकि ये जियो न्यूज़ का वो एक ट्वीट था जिसको उन्होंने रीट्वीट किया। मुझे नहीं पता, इमरान खान के साथ तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपको देखें, पहले आप अपना समझ लें कि अगर एक वहाँ पे एक अपॉइंटी अमेरिका में, आपको याद होगा डोनाल्ड लू, हम तो डोनाल्ड लू जो एक सरकारी अफसर था उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में, उसका एक मैसेज आया था तो हमने हुकूमत गिरा दी थी। तो ये तो बहुत सीनियर आदमी है जिसने ये कहा है रिलीज इमरान खान। तो अगर एक वो सरकारी अफसर जो डिपार्टमेंट में काम करता है उसके कहने पे अगर हम रातों रात हुकूमत गिराने की शुरुआत कर लें और जल्दी जल्दी गिरा दें 3 हफ्ते में या कितने 2 हफ्ते में जल्दी से हुकूमत गिरा दी, किसके कहने पे? डोनाल्ड लू के, यही कहते हैं ना। और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था। तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो ये नहीं चाहती कि इस किस्म की बाहर के मुल्कों में इंटरफेरेंस हो, तो इमरान खान ने हमेशा कहा है कि बाइडेन के जाने से सिर्फ ये होगा कि जो बाजवा और हुसैन हक्कानी ने वहाँ पे जाकर बड़ी मेहनत करके लॉबिंग की थी, जिसके नताइज में डोनाल्ड लू को के साथ उन्होंने ये मिलके किया था, तो फिर इस हुकूमत में वो नहीं होगा जो बाइडेन की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर किया था, जो हमारी मईशत भी डुबो दी, हजारों लोगों को गुर्बत के लकीर के नीचे भी धकेल दिया। और फिर आप देख लें यहाँ पे सड़कों पे जाके अब कत्ले आम करने का मतलब ये है कि जो कत्ल कर रहे हैं, जो ये मैसेकर कर रहे हैं, डेस्परेट तो वो लग रहे हैं इस वक्त। क्यों आपको कत्ल करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, अलीमा साहिबा यही बताइएगा, खान साहब खुद और पीटीआई भी इस चीज़ की हमेशा से मुखालिफत की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की। तो इस रिचर्ड के मुतालबे को जो कि इमरान खान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको आप जायज़ समझती हैं? उसको क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? एक मुतालबा मैंने आपको फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखिए, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसीज के लिए ये बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट करेगा। क्या आपकी बात भी खान साहब इस चीज को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे अगर कोई मुदाखलत होती है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर नहीं भेजा। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो अपोजिशन से मिल के? हसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों, खान साहब ने कहा कि मिल लें। तो जरूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने